چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور علی خٹک نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ یونین کونسل 7 بلال کالونی میں فلاور شو کا اہتمام کریں گے۔ اس کی تیاریوں کا آغاز کیا گیا تھا۔ محکمہ باغات کے ڈائریکٹر ذوالفقار قاضی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر واجد علی اور اوورسیئر رضوان نے سب کوشش کی، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاور شو کی تیاری مکمل تقریباً ہو چکی ہے۔ تقریباً کیا مکمل ہو چکی ہے۔ گروپ بنے، چھوٹے بڑے گروپ، اور یہاں پر یقینی طور پر پھر لوگوں کی آمد کا بھی سلسلہ شروع ہونا تھا، اس لیے اس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بلال کالونی یونین کونسل 7، جی ہاں، یو سی چیئرمین عبد الرحمان اور ان کی وائس چیئرمین کونسلر کی کاوشیں تھیں، اور وہ بھی 10 دن تک اظہار لگے ہوئے تھے۔ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور یہاں کچھ مونومنٹ بھی رکھے تھے، یعنی کہ وہ بارہ سنگے، زراف اور زیبرا، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہاں گروپ بنائے گئے تھے اور دیوار کے ساتھ خوبصورت گملے بھی سجائے گئے تھے۔ یہاں پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک اور اراکین قومی صوبائی اسمبلی، علماء کرام، یونین کونسل 7 کے چیئرمین عبد الرحمان، وائس چیئرمین طارق محمود پنگش، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر یہاں پر موجود تھے، اور یقینی طور پر وہ سب خوش تھے کہ آج پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران بھی باقاعدہ فلاور شو کا افتتاح ریبن کاٹ کر کیا گیا کہ بھائی چلو بھائی فلاور شو کا افتتاح بلال کالونی میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑی بات تھی جس کا ہمیں امکانات کمی نظر آ رہے تھے۔ بہرحال پھر فیتا کاٹنے کی رسم جو ہے وہ گور خٹک خوش دکھائی دے رہے تھے، ان کا کٹ گیا، میرا بھائی شوگر ہے، افتتاح ہو گیا۔ پھر پھول ہار پھول کے تحفے وہ تو لازمی ہوتے ہیں، اور پھر پھول وول پہنانے شروع کر دیے۔ تو چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک نے کہا بھائی ہم بھی پہنائیں گے یار آپ لوگ کو بھی، اس لیے کہ آپ، اور یہاں پر خصوصاً جو لوگ جمع ہو گئے تھے ان کو بھی پھر ہار پھول کی جو تقریب ہوتی ہے سادگی سے ہوتی ہے، یہ انجام پائش، اور یقینی طور پر یہاں سب خوش تھے، اس لیے کہ 75 سالوں میں، بلکہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ بلال کالونی میں ایک تحفہ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے فلاور شو کا۔ جی ہاں، ورنہ یہاں پر تو فلاور شو کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ لوگ بھی ٹی وی پہ اخبارات میں دیکھ لیتے تھے، لیکن محنت کشوں کی اس آبادی میں یقینی طور پر بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، یعنی کہ کاروباری لوگ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ بہرحال یہاں پر پھر سب نے مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا، مبارک ہو مبارک ہو، جی خیر مبارک ہو بھائی چیئرمین صاحب، آپ نے کارنامہ انجام دے دیا، اور یہاں پر فلاور شو کا جو خواب تھا وہ عملی طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ہو گیا۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور علی خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود پنگش خوش تھے، لیکن اس سے زیادہ یو سی 7 کے عبد الرحمان چیئرمین 12 لاکھ خوش تھے کہ بھیا چلو بھائی ہمارے علاقے میں بھی رونق آئی، وہ کہتے ہیں نا بجلی آئی، یہاں پر تو رونق آ گئی، جس کے امکانات تقریباً نہ تھے، اس لیے کہ اب تک یہاں ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک نے ثابت کر دیا، ان کی کیبنٹ نے یعنی کابینہ کے لوگوں نے، کہ وہ بلا رنگ و نسل کسی سیاسی امتیاز کے بغیر نہ مذہبی چیزوں کے بلکہ سب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ شاہ فیصل ٹاؤن کی تمام یونین کونسلز میں تمام برابری کی بنیادوں پر کام کرنے کی طرف یہ راغب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پرسکون بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کی شاید تعریف اسی بنا پر کر رہے ہیں کہ یہ سہولیات کی فراہمی کو بلا رنگ و نسل کسی تفریق کے اور لسانیت کے قومیت کے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر سادہ سی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جب مقرر نے کچھ خطاب بھی کیا، ذرا سنیے ذرا غور سے۔ انتظامیہ ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہے، ڈی ایس پی صاحب ہے، ہمارے ایم این اے عطا اللہ صاحب ہے، دیگر مہمان، اور خاص طور پہ خصوصی طور پہ شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گوہر خان خٹک صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں جس طرح ان کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اسمبلی میں بھی اتنا کام نہیں کر سکا، میں 3 الیکشن لڑا ہوں، یہ میں مان رہا ہوں آج جتنا کام گوہر خان اور ان کی ٹیم کر رہی ہے اس علاقے کے لیے، یہ قابل ستائش ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے اور مجھے خوشی ہے اس کے اوپر۔ اسی لیے ہم آج آئے ہیں کہ اس پسماندہ علاقے میں انہوں نے پھولوں کی نمائش، چونکہ ایک سیزن چل رہا ہے، موسم چل رہا ہے پھولوں کا، انہوں نے انعقاد کیا ہے، اور ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیوریج کے کام کرا رہے ہیں، گلیوں کے کام کرا رہے ہیں، پارکوں کے کام کرا رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں یہ تبھی ممکن ہے، یہ بلدیات کا نظام کوئی 25 سال سے کسی کے پاس رہا، ملازمین بھی ان کے، انتظامین بھی ان کے، اور پورا اختیار بھی ان کا، لیکن کراچی کی جو حالت ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہ جو شاباش دیتا ہوں اس ٹیم کو، یہ اس لیے کہ یہ عمران خان کی قیادت میں ہے،
तो इस नारे के साथ इजाजत चाहूंगा। इमरान खान। हादसा आने वाले मेहमानों में जिनमें रुकन सिंध असम्बली थे, रुकन असम्बली के और असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी खुसूसी तौर पर तशरीफ फरमा हुए थे इस तकरीब फ्लावर शो में। तो उनको भी फ्लावर शो के हवाले से बताया गया और उनको मुआयना करते रहे जहाँ खूबसूरत फूलों को सजाया गया था। डायरेक्टर बागाज गाजी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाजिद, ओसीआर रिजवान और इनकी पूरी टीम की काविशें और खुसूसन अब्दुल रहमान यूनियन कौंसिल 7 के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, उनकी भी काविश थी 10 दिन थे। लेकिन इस पे असिस्टेंट कमिश्नर वो क्या कह रहे हैं सुनिए। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी की ज़बानी वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं टीएमसी शाह फैसल के चेयरमैन गौहर खटक साहब और उनका जो पार्क्स डिपार्टमेंट है उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बंजर ज़मीन, एक वीराना जो है वो प्लॉट का टुकड़ा, उस पर मेहनत करके, उस पर इन्वेस्टमेंट करके खूबसूरत पार्क डेवलप करना फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बिलाल कॉलोनी जैसे पसमानदा इलाके में फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट का जो है वो सोर्स फराहम करना, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। आजकल आपको पता है कराची में हमारे पास ग्राउंड्स, पार्क्स या खेलने की जो जगह हैं वो बहुत कम है। आबादी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे पास वसाइल कम है। तो ऐसी सूरत हाल में एक अच्छा पार्क डेवलप करना और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के हवाले करना, फैमिलीज़ के हवाले करना, लेडीज़ के हवाले करना, चूँकि हमारी माएँ बहनें यहाँ शाम में आके वॉक करेंगी, एंटरटेनमेंट होगी, उनको बैठेंगी, गपशप करेंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए टीएमसीज़ का यही काम है, रोड्स जो अंदर गलियां हैं उनको बनाना, पार्क्स को बनाना, ग्राउंड्स को बनाना, या जो आवाम की जो खिदमत वाले काम हैं इस तरह के काम करना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो टीएमसीज़ की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वैसी नहीं है। लेकिन शाह फैसल अच्छा काम कर रहा है, कोरंगी भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी भी हमें जो हमारी ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ सबकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उससे आवाम को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छा कदम है, गौहर साहब काम कर रहे हैं और ये आगे भी इन्होंने मुझे बताया कि इनका आगे प्लान है और भी मज़ीद जो शाह फैसल टाउन की जो कोरंगी के हदूद में हैं एरियाज़, बिलाल कॉलोनी है या मेहरान टाउन है या गुलजार कॉलोनी है, उसमें इस तरह के पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो अच्छी बात है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है यहाँ अहले मोहल्ला की, हम जो लोकल लोग हैं उनकी इस पार्क को मेंटेन किया जाए, इसमें जो ख़र्चा हुआ है या जो इसकी सफाई सुथराई के निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए ताकि हमारी फैमिली, हमारे बच्चों के लिए इसी तरह से इस्तेमाल होता रहे। और फिर बिलाल कॉलोनी में ख़वातीन बच्चों का रश आ गया। आप बोलोगे ख़वातीन नहीं है, हम बताएंगे ख़वातीन भी आपको साबित करेंगे। आपका तसव्वुर था कि बिलाल कॉलोनी में शायद ख़वातीन नहीं आएंगी, हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन बाहर बच्चे खुश थे और खेल कूद में मगन थे, एक ज़बरदस्त तफरी, यानी ईद के दिन ये खुशियाँ होती थी। लेकिन आज इनकी बिलाल कॉलोनी में एक ख्वाब था। ये देखें ख़वातीन भी आ रहे हैं, और भी ख़वातीन आई थी, ये तो हमने एक दिखाया, अभी और भी दिखाएंगे। साइडों में और भी ख़वातीन बच्चे यहाँ आ गए थे फ्लावर शो में, इसलिए कि ये कुदरती खुशी होती है। देखें ख़वातीन, और फिर झूले वूले थे, उसकी वजह से तो और रौनक लग गई और बच्चों में तो खुशियाँ ही दौड़ गई। ये बोला मैं भी आया था, भाई तुम क्यों आए थे हार पहन के, हैं शहजादे निकलो। फिर यहाँ पर मासूम बच्चे खुद फूलों के साथ अपने आप को कैमरे में महफूज कर रहे थे। हमने बच्चों से कुछ पूछा, सुनिए जरा। अगर फूल वूल कैसा है, झूले वूले कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसे लगा तुम्हें? ये तुम्हारे इलाके में पहली दफा फूलों की नुमाइश लगी है या पहले भी लगती थी? मैं तो पहली दफा ही देखी है। पहली दफा देखी है। कैसे है फूल? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे, और क्या क्या अच्छा लगा? और फूल बहुत अच्छे लगे और यहाँ की जो डेकोरेशन है वो भी बहुत अच्छी लगी। क्या देखा, कैसा लगा है? कैसा लगा? अच्छा क्या अच्छा लगा यार? अच्छा क्या चीज है? क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा बताए? फूल अच्छे हैं? कौन कौन से फूल अच्छे? अच्छा बताओ, कलर बताओ कौन सा है इसमें, बताओ कौन कौन से कलर के फूल हैं? हाँ कौन से कलर के फूल हैं? वो बड़े वाले देख के बताओ, बड़े वाले कौन से फूल? अच्छा येलो है, और अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? झूले वूले है नहीं है? झूले है? अभी क्या क्या लगा? अच्छे फूल है या बेकार फूल है? अच्छे फूल है। अरे कहाँ से अच्छे है यार? कौन सा अच्छा है? सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं। अच्छा क्या बेकार है? अच्छे कैसे मतलब? पश्तो में अच्छा थोड़ी बोला मैं, फिर तुमसे अच्छी पश्तो तो मैं बोलता हूँ फिर तो। जोर से बोलो। खाजी का मतलब है यार? खाजी का मतलब है अच्छे अच्छे। अच्छा और क्या अच्छे फूल अच्छे हैं, और क्या झूले वूले है नहीं है इधर? सारे जोर से। सारे अच्छे।
फिर इस मौके पर चेयरमैन शाफेसल टाउन गौर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंकज से भी हमने बात की। सुनिए जरा, अब इनकी भी खुशी तो सुनने की जरूरत है। सही कहा आपने, कहा था कि मैं फ्लावर शो का तोहफा दूंगा बिलाल कालूनी में, और हमें तो ऐसा लग रहा था कि इसमें आप नाकाम हो जाओगे, लेकिन यहाँ तो सीन ही कोई दूसरा है। और सुना एक टिकट में कोई 2 मज़े हैं, वो क्या है, 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद? बहुत शुक्रिया जी। कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला देता है, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। और मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि जो भी काम करता हूँ अल्लाह ताला कामयाब कर देता है। इसमें मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और मेरी टीम शाफेसल टाउन की टीम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि हर जगह हर मैदान में सरगर्म अमल होती है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, या शब बारात हो, या पार्कों में फूलों की नुमाइश हो, या ग्राउंड या रोड बनाना। तो मैं अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक टीम वर्क है और यहाँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है अगर आप दिखा सके, आपका कैमरा दिखा सके कि मुझे जिस चीज़ की तवक्को थी उससे ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। बच्चों की खुशी देखे, कराची जैसे शहर में इस एरिया में पहली मरतबा फ्लावर शो और इस तरह के पार्क बनने जा रहे हैं। ये पहले नहीं था। यहाँ अगर आपको मैं इसकी तारीख बताऊं कि कचरे का ढेर बना हुआ था और यहाँ कोई पूरे इलाके का कचरा आके डंप होता था। और ये बराबर में सबसे बड़ी मस्जिद है, यहाँ मदरसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तकरीबन बिलाल कालूनी का सबसे बड़ा मदरसा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और इंशाल्लाह इस पार्क को हम और बेहतरीन करेंगे। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ ख़वातीन का मसला होता है पर्दे का, उनके लिए भी हम एहतमाम कर रहे हैं कि सुबह उनके लिए अलहदा खोले। और फूलों की नुमाइश के लिए भी 2 दिन मैं ख़वातीन के लिए रखूँगा। और पूरा जो बिलाल कालूनी के स्कूल है या हमारे शाफेसल के स्कूल है उनको दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आए और वो झूलों वालों को कहूँगा कि उनको फ्री एंटरटेन करें इंशाल्लाह। ये बिलाल कालूनी का आप लोगों ने कहा था हम करेंगे, और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि आप नाकाम हो जाओगे, फ्लॉप शो होगा, इसलिए कि शायद इसके अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन यहाँ तो सूरत दूसरी है भाई, यहाँ तो हाउसफुल नुमाइश जारी है, पूरी फिल्म चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ भाई। आप देख सकते हैं कि ये बिलाल कालोनी UC7 बहुत पसमानदा इलाका है। इसमें जगह जगह कुछ अर्सा पहले सेवरेज के मसाइल थे, रोड ख़राब थे, पार्क बिल्कुल खंडरात का वो पेश कर रहे थे। कुछ अर्सा पहले यहाँ डॉक्टर गदीर खान पार्क गुलजार कालोनी UC5 में इफ्तिताह किया था उसका। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमानिया पार्क UC7 बिलाल कालोनी में इसका इफ्तिताह और साथ फ्लावर शो हो रहा है, जो कि पिछले साल भी एक बेहतरीन फ्लावर शो सबा अख्तर पार्क में किया गया था। जो हमारे टाउन में, जैसे आपने सवाल किया कि बज़ाहिर दिख रहा था कि फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन आज आपके सामने शानदार तरीके से सही जश्न के तरीके से इसका इफ्तिताह भी हो रहा है, साथ साथ फ्लावर शो भी हो रहा है। और इंशाल्लाह जो हमारे चेयरमैन साहब गौर खटक साहब ने वादा किया है और जो हमारी टीम एफर्ट कर रही है, आने वाले वक्त में और भी इससे अच्छे बेहतर काम करेंगे। मैं इसके साथ साथ कहना चाहता हूँ कि गौर खटक साहब के साथ हमारे डायरेक्टर पार्क काजी जुल्फ़िकार और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है। अगर उनका नाम ना लिया जाए तो उनकी ज़्यादती होगी और इंशाल्लाह इससे और बेहतरी आ सकती है। बहुत वेल डन काजी साहब, शाफेसल टाउन पूरी टीम, चेयरमैन साहब और हमारे जितने काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे UC के चेयरमैन रहमान भाई, वाइस चेयरमैन उस्मान भाई और उनके काउंसलर तमाम। फिर यूनियन काउंसिल 7 के मेज़बान अब्दुल रहमान, जिनकी UC में फ्लावर शो हो रहा था, वो बहुत खुश थे। सुनिए ज़रा इनकी ज़बानी। सर बताइए, ये UC7 कहलाती है बिलाल कालूनी, गली महल्ले तबाह, ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो मैं देख चुका हूँ कूड़े करकट के अब बाहर होते थे। ये क्या हुआ? और फिर हम तो समझ रहे थे आप लोग नाकाम हो जाओगे भाई आज और आप फ्लॉप शो करोगे, लेकिन यहाँ तो पब्लिक हाउसफुल चल रही है, यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं पैर रखने की, बच्चों का और बड़ों का रश आ गया। असल में बात यह है कि ये बच्चों का और इसकी इलाके के हवाले से आपने बात की, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोयले की कान में से हीरा निकल जाए, और वो हीरा है गौर खटक की शक्ल में। लोगों की जो उम्मीदें थी, इससे पहले जितने लोगों को भी वोट दिया, MPs थे, MNS थे, चेयरमैन थे, जितने भी लोगों को वोट दिया, उन्होंने पलट कर इस इलाके की तरफ, इस इलाके की आवाम की तरफ, इनके मसाइल की तरफ कभी देखा ही नहीं। पहली मरतबा लोगों ने देखा है कि जिस शख्स को हमने वोट दिया, जिसको टाउन का चेयरमैन बनाया, जिसको UC का चेयरमैन बनाया, आज वो हमारे हकूक़ को हमारे दरवाज़ों तक पहुँचा रहा है। तो लोग इस चीज़ को देख के बड़े खुश हो रहे हैं। 1979 की आबादी है, बिलावल भट्टो के नाम से ये आबादी है, भट्टो के नाम से। और इस इलाके की तरफ किसी भी तंजीम ने, खासकर उस तंजीम को जिसके नाम पर ये आबादी बनी है, उसकी तरफ कभी पलट कर नहीं देखा। ये कंडरात थे, ये आज बिलाल कॉलोनी है, इससे पहले बिलाल कॉलोनी कंडरात कहलाते थे। ये यहाँ की गलियाँ, यहाँ के सीवरेज के मसाइल, यहाँ के पीने के पानी के मसाइल, आज जिस जगह पे खड़े हैं ये कराची का उसका कचरे का ढेर था, आज वो पुलों का ढेर बन गया। तो इसको पुलों का ढेर बनाने वाला कौन है?
टाउन चेयरमैन शाह फैसल अपना गौहर अली खटक साहब। अब जब कोई भी शख्स किसी इलाके की आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसको इस जगह तक बिठाया, वो उन लोगों के लिए काम करेगा तो क्रेडिट तो उसके पास जाएगा। पहली मर्तबा इलाके के लोगों ने इस इलाके के अंदर इस कचरे के ढेर के ऊपर फूलों का ढेर देखा है, और ये उन लोगों के लिए बड़ा अनमोल एक चीज़ है, एक अनमोल यहाँ जो है इफ्तिताह हुआ है, और लोगों में वो खुशी समाई नहीं जा रही है, बच्चों में, बड़ों में वो खुशी समाई नहीं जा रही है कि हमारे इलाके में हमारे लिए कितना कुछ कर गए ये लोग, और इतने की उम्मीद नहीं थी। तो पहली मर्तबा जब इस किस्म के काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पर हमें बारवां जो है लोग हमें शाबाशी भी देते हैं। खासकर वही शाबाशी जो है वो शाह फैसल टाउन चेयरमैन गौहर खटक साहब की तरफ जाती है, क्योंकि दिनों या रात वो लोगों के दरमियान होता है। उन टूटे हुए रोडों के ऊपर, उन टूटी हुई सीवरेज के पानी के अंदर, उन गलियों के अंदर हम सुबह शाम रह रहे हैं। तो इसलिए हमें ये एहसास है कि हमारे लोगों को जितनी तकलीफ़ है हम किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। हल करने के लिए तदाबीर हमारे पास बहुत थे, लेकिन उसके लिए वसाइल नहीं थे, और आज वसाइल गौहर खटक की शक्ल में हमें मुहैया हो रही है, तो हम वो वसाइल लोगों के दरवाज़ों तक पहुँचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के 27 टाउनों में सबसे बेहतरीन टाउन ये है जिसको अपने इलाके के लोगों का, जो अपने इलाके के लोगों का खैर ख्वाह है, जो उनके मसाइल को समझता है, जो उनके दरमियान रहता है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब आप लोगों ने मुझे इस सीट के ऊपर बिठाया तो मैं आप लोगों के मसाइल हल कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी नज़र आ रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जैसे जो यूसी लेवल के चेयरमैन हैं उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने वाले आप लोग होते हैं। तो ये आवाज़ जब ऊपर तक जाती है और वो पलट कर गौहर खटक की शक्ल में यहाँ के मसाइल की तरफ आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है आज वो कचरे का ढेर, फूलों का ढेर बन गया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर ये बताइए, हल्के तो आप भी नहीं हो, गौहर खटक को आप हवा भर रहे हो, हल्के तो आप भी नहीं हो, 12 लाख तो आप भी हो महीने के, आप क्या कर रहे हो यार? असल में चीज़ ये होती है कि जो लीडर होता है ना, वो फौज का सरबराह होता है। जब सरबराह मजबूत हो, जब आगे वो खड़ा हो, तो पीछे जितने भी रंगोट, जितने भी जो फौजी खड़े होंगे ना, तो वो बहादुर होंगे, लीडर होंगे। आज अगर हमारे आगे गौहर खटक खड़ा है तो हम उनके पीछे बहादुरों की तरह खड़े हैं। जो 12 लाख की आप लोगों ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह उन 12 लाख को हम लोगों के दरवाज़ों तक पहुँचा रहे हैं। आज वो सारी चीज़ें मिला के जो है हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। वाकई अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, इसलिए कि एक एहसास से महरूमी का खात्मा कर दिया है चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक और उनके अफसरान ने। शाह फैसल टाउन के तमाम अफसरान और चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश और उसके साथ साथ उनकी कौंसल के लोग, और खुसूसन यूनियन कौंसल 7 के अब्दुल रहमान वाइस चेयरमैन, उनके कौंसलर, उनकी टीम का भी ये कारनामा है कि उन्होंने एहसास महरूमी का खात्मा कर दिया है कि कोई हम सब एक हैं, और तमाम लिसानियत, कौमियत, मज़ाहिब से एक तरफ सिर्फ कुदरती खुशी होनी चाहिए हमारे ख़वातीन बच्चों के, बुजुर्गों के जहन में। यही कारनामा महकमा बाग़ात ने अंजाम दिया। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।